یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. سرکار پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے کر ان کی معیار زندگی کو بہتر بنا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی. پورے جموں کشمیر میں 5G نیٹ ورک خدمات بہت جلد شروع کی جا رہی ہیں. LG منوج سنہا کی IT سیکٹر کی کاوشوں کی سراہنا. سری نگر میں G20 سمٹ میٹنگ کے انعقاد کے حوالے سے صوبائی کمیشن کشمیر نے آج لیا کئی بنیادی ڈھانچوں کا جائزہ. اور NDRF کی یوم تاسیس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی عملے کو مبارکباد. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مرکز میں ڈبل انجن سرکار اور ریاستیں پسماندہ خطوں کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے اور اس سلسلے میں ان پروجیکٹوں کی عمل آوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے جن سے لوگوں کی معیار زندگی بہتر ہو سکے. وزیر اعظم آج کرناٹک کے یادگیری ضلع میں نارائن پور لیفٹ بینک کینال کا افتتاح کرنے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. یہ پروجیکٹ 4,699 کروڑ روپے کی لاگت سے عملایا جا رہا ہے اور یہ پروجیکٹ ضلع کے پسماندہ خطے کی 5 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ زمین کو سیراب کر سکتا ہے. دریائے کرشنا پر نارائن پور ذخائر کے بعد لیفٹ بینک کینال کی جدید کاری کی گئی ہے تاکہ اس کے پانی کو مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکے. وزیر اعظم نے 10,863 کروڑ روپے کی لاگت والے کثیر دیہاتی پینے کے پانی کے پروجیکٹوں نیز 4 دیگر سڑک پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سابقہ سرکاروں نے پسماندہ خطوں کو صرف ووٹ بینک تک ہی محدود رکھا لیکن 2014 سے سرکار نے ان خطوں کی ترقی پر زور دیا ہے جس دوران پانی اور بجلی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سڑک رابطوں کو بھی مضبوط کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کے لیے متعدد پروگرام عملائے جا رہے ہیں اور نینو یوریا کو متعارف کیا گیا. اس کے علاوہ اینیمل ہسبنڈری، ماہی گیری اور مگزبانی کے ذریعے آمدن بڑھانے سے متعلق سرگرمیاں شروع کی گئیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج زیٹھیار سری نگر میں ماتا جیشٹا دیوی مندر میں حاضری دی. اس موقع پر انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود، جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی. لیفٹیننٹ گورنر نے مندر میں شردھالوں کی سہولیات سے متعلق مطالبات کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور افسران کو تمام معاملات بہت جلد حل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے موقع پر ہی متعلقہ پروجیکٹوں کی عمل آوری میں سرعت لانے کی بھی ہدایت دی. ان کے ہمراہ صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے اور ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد اور SMC کمشنر اطہر عامر خان بھی موجود تھے. راج بھون جموں میں آج لاوا انٹرنیشنل کے صدر سنیل رینا نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی جس دوران انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کو کمپنی کے اقدامات کے علاوہ ان اقدامات سے متعلق بھی جانکاری دی جو 5G آلات کو عام لوگوں کے لیے سستے میں مہیا کرنے سے متعلق کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پورے جموں کشمیر میں 5G نیٹ ورک خدمات بہت جلد شروع کی جا رہی ہیں. انہوں نے IT سیکٹر کی ان کاوشوں کو سراہا جو وہ جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کے لیے کرتے ہیں. یاد رہے LG کی ہدایت کے مطابق جموں کشمیر سرکار نے فائنینشیل کمیشن ہوم کی سربراہی میں پہلے ہی ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ جموں کشمیر میں 5G خدمات کو چالو کرنے میں سہولت لائی جا سکے. رواں سال مئی کے مہینے میں سری نگر میں G20 اجلاس کی میٹنگ منعقد کرنے کے حوالے سے صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے آج سری نگر شہر میں بڑے سڑک پروجیکٹوں، پارکوں، سرکاری عمارات، تجارتی جگہوں اور زیر تعمیر جگہوں کا دورہ کیا. صوبائی کمشنر نے سری نگر کے ایئرپورٹ پر افسران کی ایک میٹنگ کے دوران سری نگر میں G20 اجلاس کی میزبانی کی اہمیت اجاگر کی. اس موقع پر انہوں نے کئی ہدایات جاری کی جن میں فٹ پاتھوں کی ترقی، ووڈن پولز کو ہٹانے، ہورڈنگز نصب کرنے اور آویزان کیبل تاروں اور غیر ضروری روڈ ڈیوائیڈرز اور ملبے کو ٹھکانے لگانا شامل ہے. انہوں نے سرکاری عمارات اور کمرشل بلڈنگوں پر رنگ و روغن کرنے کی بھی ہدایت دی. میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور دیگر متعلقہ سینئر افسران بھی موجود تھے. بعد میں انہوں نے ایئرپورٹ سے مختلف جگہوں پر زیر تعمیر جگہوں کا معائنہ کیا. JKPCC کے مینیجنگ ڈائریکٹر RK شاون نے کشمیر صوبے میں زیر تعمیر بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی صورتحال کا جائزہ لیا.
अपने दौरे के दौरान उन्होंने श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मुतल्लिका डिप्टी जनरल मैनेजरों से मुतल्लिक जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त से मुतल्लिक तफसीलात तलब की। उन्होंने कामों की तकमील में सूरत लाने की हिदायत दी ताकि उन्हें मुकर्रर मियाद के दौरान ही मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार में जेर तामीर काम का भी मुआयना किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान और ठेकेदारों के वफूद से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूटी में उन्नत की वसातत से 215 खिदमात को लोगों के लिए दस्तियाब रखकर डिजिटल सफर में एक काबिल कद्र पेशरफ्त हासिल की है। टेक्नोलॉजी की बदौलत अब लोग एक बटन दबाकर तमाम सरकारी खिदमात को आसानी से हासिल कर सकते हैं। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुल्क में पहली यूटी है जिसने ऐसे चुस्त निजाम को अपनाया है। यह सरकारी इकदाम लोगों को बाइख्तियार बनाने की और एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रेस बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने अपनी यूनिफाइड सिटीजन सर्विस पोर्टल शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात से निपटने वाली फोर्स को आज उसके यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनडीआरएफ सबसे ज्यादा चैलेंज वाली सूरत हाल में लोगों को मदद करने की खातिर काबिल कद्र कोशिशें कर रही है और उनकी शुजाअत काबिल सताइश है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत कुदरती आफात से मुतालिक लचकदार बुनियादी ढांचे की तामीर समेत कुदरती आफात से मुतालिक बंदोबस्त को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी एनडीआरएफ के बहादुर जवानों को उनके यौम तासीस के मौके पर नई ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का सफर पेशा वाराना महारत के तहत हौसले और अज़्म की गैर मामूली कारकर्दगी पर मबनी है। उन्होंने एनडीआरएफ के उन जवानों को सलाम पेश किया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई जिंदगियां बचाई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी एनडीआरएफ के मेंबरान और उनके कुंबों को एनडीआरएफ की यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ ने आला दर्जे की पेशा वाराना महारत का इजहार किया है और काम के तई अपनी लगन और सख्त मेहनत से मुसीबत में फंसे लोगों को बचाया है। उन्होंने एनडीआरएफ के बहादुर, बेलौस और फर्जशनास जवानों को सलाम पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नामवर मजहबी स्कॉलर और आलिम दीन मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मरहूम ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में बतौर अरबी शोबे के सरबराह जो नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। डॉक्टर फारूक ने मारूफ आलिम दीन मीरवाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद यासीन हमदानी के यौम विसाल पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी बुजुर्ग इस्लामी स्कॉलर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के साबिक सरबराह मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अपनी ताज़ियती पैगाम में पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कौम एक अजीम इस्लामी स्कॉलर से महरूम हुई है और उनकी रहलत से जो खला पैदा हुआ है उसको पूरा करना नामुमकिन है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में आज आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में 3 रोजा मल्टीमीडिया एग्जीबिशन इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी इत्तलात और नशरियात की वजारत की तरफ से मुनाकिदा इस मेले के दौरान सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में लोगों को रूशनास किया गया। इख्तितामी तकरीब की सदारत कुपवाड़ा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट ने की। सेहत वर्करों, आशा वर्करों, रजाकारों और तलबा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने उनके रोल की सताइश की। उन्होंने समाज में फैले बिद्दात को नेस्त नाबूद करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। इस मौके पर फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर शाहिद मोहम्मद लोन ने कहा कि इस मेले के दौरान पीआरआई मेंबरान, आईसीडीएस फील्ड अफसरान, किसानों और महकमे माल के अफसरान समेत एनआरएलएम रजाकारों, हेल्थ और आशा वर्करों ने लोगों को बुनियादी सतह पर मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में रूशनास किया। उन्होंने कहा कि उनका महकमा आने वाले दिनों में ऐसे प्रोग्राम श्रीनगर और पुलवामा अजला में भी मुनाकिद कर रहा है। बड़गाम स्टेडियम में आज फौज की चिनार कॉर्प्स की तरफ से नो योर आर्मी मुहिम के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जो यौम जमहूरी तकरीबात की तमहीद के तौर पर मुनाकिद की गई, कसीर तादाद में आम शहरियों और साबिक फौजियों ने शिरकत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह राष्ट्रीय राइफल्स 5 सेक्टर के कमांडर ने किया। तकरीब में स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेटों और बडगाम और इसके मजाफात के जवानों और मकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में फौज की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे मुख्तलिफ चीजों जैसे आर्टिलरी गन्स,
एयर डिफेंस गन्स, माइन डिटेक्टर्स और मलबूसात की नुमाइश की गई। यौम जमहूरियत तकरीबात में शमूलियत के हवाले से पुलिस की तरफ से आम लोगों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। SSP सिक्योरिटी जम्मू SS कोतवाल की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक यौम जमहूरियत तकरीबात में लोगों की भारी शिरकत के पेश नजर सिक्योरिटी जम्मू ने लोगों से ताउन तलब किया है। लोगों से कहा गया है कि अपने साथ सेलफोन, कैमरा, हथियार, बारूद और तेज धार वाली हथियारों के अलावा पॉलीथीन बैग, हैंड बैग या दूसरे किस्म के खिलौने साथ लाने से इज्तनाब करें। आम लोगों से कहा गया है कि मुख्तलिफ गेटों पर मामूर चेकिंग टीमों से पूरा ताउन करें जो उन्हीं की हिफाजत के लिए होते हैं, ताकि यौम जमहूरियत तकरीब को ऐसे तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री और ग्राम पंचायत के बाहमी इश्तराक से जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में न सिर्फ तरक्की रफ्तार पकड़ रही है बल्कि गांव देहात में सब्ज जायदाद को बहाल करने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। मौजूदा माली साल के पहले 9 माह के दौरान यूटी के 20 अजला में 29,043 घरानों में चारा और फूड की एक कसीर मिकदार तकसीम की गई है। इन बातों का इजहार कैंपा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर नजीर बेनजीर ने जम्मू, कठुआ और सांबा अजला के हालिया दौरों के दौरान किया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के गैर रस्मी मीटिंग के दौरान कसीर मुल्की इदारों में इस्लाहत पर जोर दिया है। भारत ने हमा मुल्की इदारों में इस्लाह को फौरी जरूरत करार देते हुए कहा कि उन्हें तरक्की पजीर दुनिया की आवाज बनने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जिसमें 21वीं सदी के हक़ाइक़ की अक्कासी हो। अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा रोचरा कंबोज ने कहा कि भारत को बैन अक़वामी मंजरनामे में बढ़ते हुए उथल पुथल पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का सदर होने की हैसियत से दुनिया के साथ सरगर्म तरीके से राबिते में रहेगा। भारत और ओमान ने दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी कलीदी शराकत दारी के तई अपनी अज़्म की एक बार फिर तस्दीक की है। नई दिल्ली में भारत और ओमान के दरमियान 8वें कलीदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने एतमाद और आपसी एहतराम की बुनियाद पर बाहमी कलीदी ताल्लुकात को बढ़ाने की खातिर दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से तय की गई आला तरजीहात को उजागर किया। दोनों फरीकों ने खित्ते में बहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की अहमियत को दोहराया। दोनों ममालिक ने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की और इस लनत से निमटने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने भारत और ओमान के दरमियान बाहमी ताउन के एक अहम मैकेनिज्म के तहत कलीदी मुज़ाकरात की अहमियत को भी दोहराया। दोनों मुल्कों के दरमियान 9वें कलीदी मुज़ाकरात अगले साल ओमान में होंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के साथ भारत की मजबूत शराकत दारी को उजागर किया है और कहा कि दोनों मुल्कों पर खित्ते में मुश्तरका अमन सलामती की जिम्मेदारी आयद होती है। डॉक्टर जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के सदर इब्राहिम सोलेह के साथ मुलाकात की। उन्होंने मालदीव के अपने हम मनसब अब्दुल्ला शाहिद के साथ भी मुज़ाकरात किए। दोनों फरीकों ने बाहमी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए और उनका तबादला किया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।